Good morning, student. Today we'll continue our chapter 12. Magnetic field due to circular current carrying conductor. See, the name is circular current carrying conductor. Create a magnetic field. We have seen the shape of magnetic field produced by a straight current carrying conductor. Imagine that straight wire is now bent into a circular coil and current flows through it. What would be the shape of the magnetic field produced? Let us fix a circular coil on a cardboard sheet. This is your circular coil you have fixed on a cardboard sheet. When current start flowing in the coil, sprinkle the iron fillings on the cardboard. You have to sprinkle some iron fillings around the coil. We can observe that iron fillings get arranged in concentric circle around two strands of the loop. What you will observe? All the iron fillings you have placed around the coil, they get themselves arranged in a concentric circle. See this circle. They arrange themselves in a concentric circle. We move away from the wire. Now as we move away from the wire, the circle get larger in diameter and space further more apart. जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, वायर को मूव करेंगे फ्रॉम द वायर से दूर करेंगे तो सर्कल क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े होते जाएंगे. बट they arrange themselves in a concentric circle. That is important. As the distance increases, the lines appear almost straight due to larger diameter. और जैसे ही इसका डिस्टेंस दूर दूर होते जाएगा तो हमें वो सीधे सीधे लगने लग जाएंगे, क्योंकि उनका डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. By using right hand rule, we can observe that circular wire produce a magnetic field which has the lines of force in the same direction at every section of the circular coil, and therefore the intensity of the magnetic field gets magnified. क्या हुआ यहाँ पे, हम राइट हैंड रूल पिछले वाले इसमें पढ़ चुके हैं. वी कैन ऑब्जर्व दैट सर्कुलर वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो सर्कुलर वायर है ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, एंड विच हैज़ लाइंस ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन. और उसके लाइंस ऑफ फोर्स का कौन सा डायरेक्शन है, एट एवरी सेक्शन ऑफ द सर्कुलर कॉइल. तो इस सर्कुलर कॉइल के आप कहीं कौन से भी सेक्शन में आप जाओगे तो उसका लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा आपको, सेम. तो इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मैग्नीफाइड, और इसी की वजह से चारों ओर इसका क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है. मीन्स चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड की कैसे बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है. अब ये कैसे हुआ, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. यू हैव टू टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड एंड मेक 2 होल्स इन इट. आपको क्या करना है, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, उसमें 2 होल बनाने हैं. नाउ पियर्स द कॉपर वायर कॉइल थ्रू द होल इन सच अ मैनर दैट द कार्डबोर्ड लाइज हॉरिजॉन्टली ऑन द वर्टिकली हेल्ड लूप. आपको उसमें कॉपर वायर जो कॉइल है कॉपर का, मतलब राउंड शेप कॉपर वायर आपको लेना है और उसको होल में से उसको डालना है. कैसे डालोगे, तो in such a manner that cardboard lies horizontally on the vertically held loops. तो लूप कैसा फॉर्म हो रहा है, वर्टिकल. यहाँ पे देखो कार्डबोर्ड पे, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड पे आपने इसको फिक्स किया तो लूप कैसे फॉर्म हो रहा है, ये देखिए, वर्टिकली हेल्ड लूप. टांगोगे ना उसको कार्डबोर्ड को तो ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. Join the battery, current controller, ammeter and switch in series in this circuit as switch in. मतलब आपको यहाँ पे उसको ज्वाइन करना है उस वायर को, किसके साथ, एमीटर के साथ. देन करंट कंट्रोलर, रियोस्टेट हियर इज, एंड बैटरी. जैसे ही आप की को क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड. Again you have to sprinkle some iron fillings around the cardboard, around the coil on the cardboard. क्या हो जाएगा, they sprinkle iron fillings uniformly
on the board. Sprinkle iron filling uniformly on the cardboard. Switch on the current. Gently tap the cardboard to enable the iron filling to arrange themselves in a particular shape and study the pattern form. थोड़ा सा उसको क्या करोगे, टैप करोगे कार्डबोर्ड को जब आप आयरन फिलिंग्स डालोगे तब, तो क्या हो जाएगा, वो सारे जो आयरन फिलिंग्स है एक सर्कुलर शेप में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया है. क्लियरली विजिबल ना, अरेंज और आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल. Gently tap the cardboard and arrange themselves in a particular shape and study the pattern form. We have learned that intensity of magnetic field produced by a current carrying conductor is directly proportional to amount of current flowing in the conductor. That is important. Intensity जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी जो इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, amount of current flowing in the conductor. If we have a wire coil of n circular loop, then the magnetic field intensity would be n times that produced by a single coil. This is due to the fact that direction of current flowing in each loop is same. जो लूप मैग्नेटिक फील्ड के आप देखोगे उसमें हर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा है, सेम है. तो सपोज एक लूप में जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो n है, n circular loops. If we have a wire coil of n circular loops, वो जो कॉइल है उसमें कितने लूप्स हैं, ये जो कॉइल है यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये देखो ये 1 और 2, एक्चुअली वो कॉइल में लूप्स होते हैं तो उसमें बोला है कि n लूप्स है. इफ़ वी हैव अ वायर कॉइल ऑफ n सर्कुलर लूप्स, तो उसमें आप देखोगे अच्छी तरह से कोई आप पंखे का वाइंडिंग देखोगे या वो ऐसे सर्कुलर वाला मोटर का देखोगे तो उसमें आपको दिखेंगे अलग अलग, मतलब एक एक तार ऐसे जोड़ा हुआ रहता है, तो वो एक एक लूप जो होता है, तो सपोज दैट कॉइल हैव n लूप्स, देन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, n टाइम्स that produced by a single coil, and this is due to the fact, क्यों ऐसे हुआ, because the direction of current flowing in each loop is same. जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n loops become n times. Now repeat the above activity by reducing the diameter of the wire loop. The coil acts as thin disk magnet, and where one plane of the disk acts as a north pole and other plane acts as a south pole. उसकी वायर के लूप को आप क्या करोगे, पास पास लेके आओगे तो वो डिस्क जैसा बिहेव करेगा आपका मैग्नेट, और वो नॉर्थ पोल, एक इसका एक पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा पोल हो जाएगा उसका साउथ पोल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ये तो आप लोग देख चुके होंगे. अ सोलेनॉइड इज अ सिलेंड्रिकल शेप ट्यूब फॉर्म बाय टाइट कॉइल्स ऑफ कंडक्टिंग कॉपर वायर्स. सोलेनॉइड हुज टू एंड्स आर जॉइंट टू अ बैटरी. देखिए ये इसका एक एंड है और ये एक दूसरा एंड है, दे आर जॉइंट टू अ बैटरी. ठीक. When current flows in a solenoid, a magnetic field is produced around the solenoid. इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी. कंपेयर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड शेप, इसका शेप कैसे रहेगा, 4A में दिखाए जैसा. In both the figure, the magnetic lines of force appear as similar in shape and pattern. Thus, the magnetic field produced by a solenoid is similar to that of a bar magnet. बार मैग्नेट में जब जैसे हमें लाइंस ऑफ फोर्स मिले थे वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के आप लाइंस ऑफ फोर्स मिलेंगे. One pole acts as a north while other end acts as a south pole. The magnetic lines of force inside the solenoid are parallel lines which show that magnetic field inside the solenoid is uniform. और जैसे साउथ से नॉर्थ तक का जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो वो अंदर दिख रहा है, वो कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे. और पैरेलल का मतलब क्या होगा, ये देखिए आप अंदर वाला दिखा रहे हैं, ये पूरी पैरेलल लाइन से एक दूसरे को पैरेलल जा रही है. पैरेलल का मतलब है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ मैग्नेट बाय प्लेसिंग अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन इनसाइड अ सोलेनॉइड. आपको किसी क्या करना है, आयरन को मैग्नेट बनाना है तो उस सोलेनॉइड के अंदर आप रख दोगे तो वो क्या करेगा, इट बिहेव एज अ मैग्नेट.
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो मैग्नेट जैसे ही बिहेव करने लगेगा। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट प्रोड्यूस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस तरह के जो भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। द सर्कुलर शेप फॉर्म बाय बेंडिंग अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड अ लूप और अ कॉइल। दिख रहा है आपको यहाँ पे, सर्कुलर शेप फॉर्म बाय बेंडिंग अ कंडक्टिंग वायर। ये जो कंडक्टिंग वायर है ये एक सर्कुलर शेप में आ गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लूप और कॉइल। द कॉइल एंड वेयर द करंट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज एक्ट्स एज अ साउथ पोल। द सर्कुलर शेप फॉर्म बाय अ बेंडिंग वायर इज कॉल्ड लूप और कॉइल। करंट का डायरेक्शन साउथ में कैसे रहता है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो तो ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पे ये उल्टा दिख रहा है। नॉर्थ पोल में कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहाँ पे है, क्लॉकवाइज साउथ। और नॉर्थ में कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। दिख ही रहा है ये उल्टा डायरेक्शन आप लोगों को नॉर्थ पोल में। यहाँ पे एरो का डायरेक्शन आप देखो तो ये सीधा जा रहा है, साउथ में कैसा है, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे देखोगे तो ये कैसे जा रहा है, उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देन यू ट्राई टू राइट द क्वेश्चन, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, तो उसके ऊपर फोर्स कितना होता है इसको हम समझते हैं। वी लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एनी कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर एंड व्हेन अ कंपास इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड द कंपास नीडल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। Similarly, the compass will produce an equal but opposite force on the conductor. अब हुआ क्या, यहाँ पे जो करंट फ्लो हुआ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड क्रिएट हुई, और उस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद जो फोर्स हमने यदि कंपास नीडल वहाँ पे रखी तो वो डिफ्लेक्ट हुई। वो डिफ्लेक्ट क्यों हुई, सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंपास नीडल एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। बट हमें पता है कि फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, then that compass needle also exhibit force which is in opposite direction on the conductor, right? ये तो हमें पहले से ही पता है कि फोर्स पेयर में एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो कंपास नीडल पे फोर्स आ रहा है उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, और कंपास नीडल क्या कर रही है, फोर्स कंडक्टर के ऊपर इम्पोज कर रही है। To study the force acting a current carrying conductor due to presence of a magnetic field। अब हम बात करते हैं कि एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है उसको कैसे हम जानते हैं। लेट अस सी, स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड AB, यू नीड अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड AB, जॉइनिंग वायर्स, हॉर्सशू मैग्नेट, बैटरी, स्विच, वुडन स्टैंड। ये सब चीज़ें आपको लगेगी। ये आपका वुडन ब्लॉक है, ये आपकी एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, और आपने क्या किया है, दिस इज योर हॉर्सशू मैग्नेट, वुडन ब्लॉक के ऊपर इसको फिक्स किया है, किसको, एल्यूमिनियम स्ट्रिप को। नाउ फिक्स एल्यूमिनियम रॉड ऑन वुडन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। Place a strong horseshoe magnet in such a way that aluminum rod lies centrally and horizontally between the two poles of the magnet। तो इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप के ठीक सेंटर में आपने इस हॉर्सशू मैग्नेट को प्लेस किया। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट शुड बी एट द फ्रंट ऑफ द रॉड। नॉर्थ पोल सामने आएगा और साउथ पोल बैक में जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नॉर्थ से साउथ रहती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स, तो कैसी रहेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ स्विच ऑन द करंट, और उस कॉपर एल्यूमिनियम स्ट्रिप को हमने बैटरी से जोड़ा है। नाउ स्विच ऑन करंट इन द एल्यूमिनियम रॉड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द करंट फ्लोज, चेंज, एंड वी ऑब्जर्व दैट रॉड टर्न्स लेफ्ट। क्या हो गया, ये रॉड जो है लेफ्ट की तरफ मूव हुआ। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। फिर डायरेक्शन चेंज कर दो करंट फ्लो का, तो वो राइट में मूव होगा। द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन दिस एक्टिविटी शोज दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है आपके एल्यूमिनियम स्ट्रिप का, इट इज ड्यू टू द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड।
द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स चेंजेस ऑन चेंजिंग द करंट डायरेक्शन, और जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज करते हो तो वो एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो मूव हो रही है उसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. Now change the position of the magnetic pole in the above activity and observe whether the direction of force also changes. Force direction changes on changing the direction of magnetic field. हमने नॉर्थ को अब अंदर कर दिया बैक साइड, और क्या कर दिया, साउथ को फ्रंट में लिया. पहले साउथ बैक में था और नॉर्थ फ्रंट में था, ठीक. फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने से द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स, तो उसका भी डायरेक्शन क्या हो गया, रॉड का जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो अलग दिशा में एक्ट होने लगा. तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसके ऊपर और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के ऊपर उस फोर्स का क्या है, डायरेक्शन डिपेंड करता है. We kept the current direction and magnetic lines of force perpendicular to each other and observed that direction of force produced is also perpendicular to both of them. डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने कैसे रख दिए, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कैसे होगा, इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. तो दोनों को वो कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर. और इसी को हम समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से. क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, जो भी कंडक्टर या वायर है आपका वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फ्लेमिंग गेव द लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या पता करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर, उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन. व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड अ लेफ्ट हैंड कैन बी हेल्ड एज शोन. आपको लेफ्ट हैंड को लेना है, वेयर थंब, द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर आर हेल्ड इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपको कैसे रखना है, थंब, फर्स्ट फिंगर, इसको हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, एंड मिडल फिंगर आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल करते हुए आप रखोगे. यहाँ पे दिखाया है, देखिए ये एंगल जो है इनके बीच का, ये कितना है, एग्जैक्टली 90 डिग्री दोनों के बीच का, फिर इस दोनों के बीच का. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिजल्टिंग फ्रॉम द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको पता चलेगा थंब की डायरेक्शन से. द एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, first finger and middle finger are held perpendicular. The thumb represent direction of motion resulting from the force. Then experience by the conductor to the first finger represent the direction of magnetic field. Index finger आपका बताएगा direction of magnetic field. Middle finger represent direction of current and thumb represent direction of force acting on the conductor. ये आपका लेफ्ट हैंड का पोजीशन इस तरह से होगा, तब आपको पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर सम ऑफ इक्विपमेंट विच मेक यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट जो कंडक्टर कैरी करता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर. आप सबने इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर दोनों को देखा है. इसमें यूज़ किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की. क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. कोई भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. दे आर यूज इन न्यूमरस अप्लायंसेस एंड मशीन्स लाइक इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वाटर पम्प्स. आपके घर में जो किचन यूटेंसिल्स है उनमें भी यही क्या होता है, प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी पावर्ड बाय करंट डीसी,
पावर सच एज बैटरीज, रेक्टिफायर्स। ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, बैटरीज पे भी चलती है, डीसी पावर पे चलती है या फिर अल्टरनेटिंग करंट पे भी चलती है, सच एज पावर सप्लाई, ग्रिड, जनरेटर एक्सेट्रा। हमारे यहाँ के जो अप्लायंसेस है वो किससे चलते हैं, AC करंट से। Principle: when a circular coil is placed inside a magnetic field and current flows in the coil, then force acts on the coil which moves it continuously. सर्कुलर कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लोज इन द कॉइल, उस कॉइल से करंट फ्लो होगा, एंड द फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच मूव्स इट कंटिन्यूसली, और उस फोर्स की वजह से वो कॉइल रोटेट होने लगेगी। व्हेन द कॉइल इन टर्न रोटेट द एक्सल attached to it and the axle deliver the mechanical power. In this manner motor convert into electrical energy into mechanical energy. उसका जो एक्सल रहता है, शाफ्ट रहता है, वो भी क्या होता है, फिर रोटेट होने लगता है और मैकेनिकल पावर कन्वर्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने लगता है मैकेनिकल पावर में। तो ये आपने इलेक्ट्रिक मोटर को तो देखा होगा, हम लोग साइंस एग्जीबिशन में कितनी सारी मोटर लाए थे। In an electrical motor, a rectangular loop of insulated copper wire is placed between two cylindrical poles. यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगुलर कॉपर वायर प्लेस बिटवीन, किसके बीच में रखा है, ये देखो, ये मैग्नेट है आपका। रेक्टेंगुलर लूप कॉइल इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, दिख रहा है, ये ABCD इज योर कॉपर वायर प्लेस बिटवीन टू सिलेंड्रिकल पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे जो मैग्नेट है वो कौन से है, परमानेंट मैग्नेट, इन सच अ वे दैट आर्म्स AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो AB और ये CD कैसे है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। द लूप कैन बी मेड टू स्पिन बाय अटैचिंग अ हाफ सर्कल ऑफ कॉपर X and Y to each end of the loop। आपको दिख रहा है यहाँ पे X and Y, ये हाफ सर्कल। द लूप कैन बी मेड टू स्पिन, ये लूप को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, कैसे, बाय अटैचिंग अ हाफ सर्कल ऑफ कॉपर, दिख रहा है आपको, ये X और Y हाफ सर्कल दोनों, टू ईच एंड ऑफ द लूप, इस लूप के एंड में दोनों साइड में X और Y हाफ सर्कल ऑफ कॉपर अटैच किए। द इनसाइड सरफेस ऑफ द कॉपर हाफ सर्कल इज इंसुलेटेड, इसका जो इनसाइड सरफेस है उसको इंसुलेट कर दिया है हमने, उससे करंट फ्लो नहीं होगा। एंड फिक्स ऑन द शाफ्ट, और इसको शाफ्ट जो डंडा रहता है मोटर का उसके ऊपर फिक्स कर दिया। एंड शाफ्ट रोटेट अलॉन्ग विद द लूप, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये शाफ्ट रोटेट होगा। The outer surface of the copper half circle are joined to two stationary conducting carbon brushes P and Q, और इसको कॉपर को किससे अटैच किया है, कार्बन ब्रश से, P and Q से। ये आपको दिख रहे हैं ब्रश, यहाँ पे P और यहाँ पे ये है Q। And fix on the shaft of motor and the shaft rotate along with the loop. The outer surface of the copper half circle are joined to two stationary fixed conducting carbon brushes। ये आपके कार्बन ब्रश है P and Q, ये X and Y हाफ सर्कल्स है कॉपर के, ये आपका ABCD रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और ये दो क्या है, मैग्नेट है। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी एंटर द लूप थ्रू ब्रश Q एंड फ्लोज आउट थ्रू द ब्रश P टू कंप्लीट द सर्किट। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, Q से फ्लो हो रहा है, और कहाँ, P से बाहर आ रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है करंट पूरा, और ये P से क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। नोट दैट लूप ABCD करंट फ्लोज फ्रॉम A टू B, A टू B, यहाँ डायरेक्शन दिख रहा है, ये डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ से ये करंट बाहर आ रहा है। नोट दैट लूप ABCD करंट फ्लो फ्रॉम A टू B, B टू C एंड C टू D, देयरफॉर करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन इन टू आर्म्स। तो इन दोनों के डायरेक्शन AB और CD का करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक कैसा है, अपोजिट है। Therefore, current flows in opposite direction in the two arms AB and CD, and due to this resulting force generated acts
ऑन ए बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सी डी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है तो ए बी को कैसे कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सी डी केस में अपवर्ड डायरेक्शन में। Therefore the loop turns or rotates in anti-clockwise direction, और इसकी वजह से ये लूप एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमेगा। After half rotation the half circle Y comes in contact with fixed brush P and half circle X is come in contact with brush Q। जैसे ये रोटेट होगा तो ये X Q के कांटेक्ट में आएगा और Y किसके कांटेक्ट में आएगा, P के कांटेक्ट में। Thus the direction of current flowing in the loop remain the same but gets reverse in the loop arms। तो डायरेक्शन उसका ऐसे ही रहेगा जैसे हो रहा है, बट लूप आर्म्स में यहाँ पे और यहाँ पे कैसा है, वो अपोजिट है, रिवर्स हो जाएगा। द करंट फ्लो नाउ फ्रॉम DC टू BA। यहाँ पे देखो अब DC से BA तक जा रहा है, ठीक। This arrangement to reverse the flow of current in the loop arms is known as dual changer, और इसी को बोला जाता है dual changer, एक बार सीधा एक बार उल्टा। The two half circle acts as a dual changer, और ये दोनों हाफ सर्कल कॉपर के जो है ये क्या करते हैं, acts as a dual changer। Due to this reversal the loop continue to rotate in anti-clockwise direction। In heavy motor used in industry the permanent magnets are replaced by electromagnet, increasing the number of turns in the coil increases amount of current which in turn increase the power of motor। तो ये डीसी मोटर रहता है या फिर हेवी मोटर्स रहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखते हैं, और उसको क्या होता है, नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा रहने से अमाउंट ऑफ करंट भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो मोटर का पावर भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। द कॉइल इज वुंड टाइटली अराउंड अ सॉफ्ट आयरन पीस नोन एज कोर, और ये कॉइल को वुंड करते हैं किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर, जिसको हम कोर बोलते हैं। द कॉइल एंड कोर असेंबल इज नोन एज आर्मेचर, और ये दोनों मिलके, कॉइल और कोर मिलके क्या बनता है आपका, आर्मेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। In this chapter we have studied when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force. This force results in the motion of conductor. Now imagine a situation where if current carrying conductor is moved through a magnetic field and electric current is produced in the conductor. This phenomena was first studied by Michael Faraday। माइकल फैराडे ने क्या स्टडी किया था, हमने अभी तक ये देखा कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रहते हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कौन, वो कंडक्टर। एंड दिस फोर्स रिजल्ट इन द मोशन ऑफ द कंडक्टर, और इसी की वजह से वो कंडक्टर क्या होता है, मूव होने लगता है। जैसे हमने देखा था वो एल्युमिनियम का जो आपका स्ट्रिप था वो शिफ्ट हुआ राइट और लेफ्ट। अब आपको ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करना है वेयर इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मूव किया मैग्नेटिक फील्ड से, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें कंडक्टर में है ही, और ये पहली बार स्टडी किया गया किसने स्टडी किया इसको, फैराडे में, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे लॉ। पहले मटेरियल रिक्वायर्ड कॉपर कॉइल ऑफ न्यूमरस टर्न, गैल्वानोमीटर एंड अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। आपको क्या करना है, टेक अ कॉइल PQ, कॉइल दिख रहा है आपको ये PQ, हैविंग न्यूमरस टर्न्स, इसमें बहुत सारे टर्न्स है। जॉइन द टू एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वानोमीटर, ये आपको डायरेक्शन दिख रहा है, दिस इज योर गैल्वानोमीटर। टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द कॉइल एंड Q। अभी आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट, इसको एक बार Q की तरफ ले जाना है, एक बार P की तरफ। व्हाट विल हैपन, नोटिस एनी एंड डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर नीडल, और ये जो गैल्वानोमीटर आपने अटैच किया है इस कॉपर के इस वो कॉपर वायर के एंड को, उसमें क्या डिफ्लेक्शन दिखता है वो देखना है। यदि वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है मतलब करंट उसमें से फ्लो नहीं हो रहा है, और जब ये मैग्नेट कम्प्लीटली विद इन द कॉइल रहेगा तो मैग्नेट मूविंग इनसाइड
तो what will happen, and magnet moving outside and magnet completely within the coil. तो यहाँ पे ये देखो, ये सीधा था, नो डिफ्लेक्शन, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अपने बाजू में रखा है, बट जब इसके पास या इनसाइड होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। डायरेक्शन इसका देखिए, और यहाँ पे देखो ठीक इसका आउटसाइड में था तो डायरेक्शन इसका भी चेंज हो गया, विद इन द कॉइल था तो डिफ्लेक्शन थोड़ा दिखा रहा है। You will notice an instant deflection in the needle of galvanometer which indicate the flow of current in the coil. As soon as the movement of the magnet is stopped, the deflection of the needle is nil. Now move the north pole of the magnet away from the coil. Current again flow in the coil, but now the deflection of the galvanometer is in opposite direction. यहाँ पे देखो outside में opposite direction में deflection दिख रहा है. You can observe that if south pole of the magnet is moved towards the coil, the deflection of the galvanometer is in opposite direction to that in the north pole of the magnet move towards Q. यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल लिया था डिफ्लेक्शन, यहाँ पे साउथ पोल नहीं दिखाया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका उसको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा टेंशन गैल्वानोमीटर में। Opposite direction to that when north pole of the magnet was moved towards Q. This activity demonstrates that when a conductor, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या सीखने को मिला, that is important. When a conductor is moved in a magnetic field or the magnet is moved, current is produced in the conductor and this is known as induced conductor, and this phenomena is known as electromagnetic induction. क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? When a conductor is moved in a magnetic field, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट कंडक्टर आप ले जाते हो और द मैग्नेट इज मूव्ड, करंट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, कंडक्टर के पास मैग्नेट ले जाओ या मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को ले जाओ, उसमें से करंट फ्लो होता है, और वो जो करंट फ्लो होता है उस करंट को बोला जाता है इंड्यूस करंट, और उस फिनोमिना को टोटल हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फैराडे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसमें हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अभी हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्प्रेड द थंब, द फर्स्ट फिंगर ऑन द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे, आपका राइट हैंड का जो थंब का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इंड्यूस करंट। परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का रहेगा, ये एंगल जो है 90 डिग्री का रहेगा, तो आपको आपका थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स एंड मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंड्यूस करंट। Now dynamo or electric generator. Dynamo is an operator which convert mechanical energy into electrical energy. Dynamo आपने देखा होगा पुराने ज़माने में क्या करते थे, साइकिल को एक लाइट लगाते थे और जैसे ही आप साइकिल के पैडल लगाते हो तो उसमें लाइट जलती थी। तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो यूज to generate large scale electric power by power plant for use in home and industry. इसका यूज हम लार्ज स्केल पे करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर टू यूज इन होम एंड इंडस्ट्रीज। आर्मेचर, फॉर दिस अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग न्यूमरस टर्न्स ऑफ, ये दिख रहा है आपको आर्मेचर कॉइल, टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज टाइटली wound अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर दिख रहा है। Magnet, the armature is placed between inside the north south pole of a strong horseshoe magnet, ये आपका horseshoe magnet है, उसके बीच में आपने इस कॉइल को डाला ABCD को अंदर में, horseshoe magnet। सर्कुलर ड्यूअल चेंजर R1 एंड R2, ड्यूअल चेंजर दिख रहे हैं यहाँ पे R1 R2, ये क्या है? स्लिप रिंग्स है, और ये आपके है कार्बन ब्रश। आर मेटेलिक हाफ सर्कल विच आर माउंटेड ऑन अ शाफ्ट, इस शाफ्ट पे इसको क्या किया है? माउंट किया है R1 और R2 को। वहाँ पे हमने दो क्या देखे थे? कॉपर के बने हुए देखे थे X और Y, और उसको कार्बन ब्रश लगे थे P और Q। कार्बन ब्रश फिक्स
करंट कंडक्टिंग कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर प्लेस टचिंग द हाफ सर्कल, और इस हाफ सर्कल को टच करते हुए यहाँ पे आपने लगाए हैं 2 कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। द ब्रशेस आर जॉइंट टू अ गैल्वानोमीटर, और ब्रश को जॉइन किया है इस गैल्वानोमीटर से। When armature shaft attached to 2 half circle is moved in such a way that arm AB above the coil is above the arm CD, then the intensity of the magnetic lines of force, क्या होगा, ये कॉइल मूव होगा तो एक बार AB ऊपर जाएगा और CD नीचे जाएगा, फिर CD ऊपर आएगा, AB नीचे जाएगा। तो इस तरह से जब प्रोसेस होता है, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द लूप वैरीज, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, magnetic lines of force passing through the loops varies and induced current is produced in the 2 arm, और उसमें induced current develop होगा 2 arm में, ये AB में और CD में। As given by Fleming left hand rule, the current generated in each coil of the armature will be add up and create a powerful current in the loop। यहाँ पे इनका डायरेक्शन सेम होने की वजह से वो करंट पूरा ऐड हो रहा है, और करंट विल फ्लो फ्रॉम ब्रशेस B1 to B2। आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द लूप द आर्म CD इज नाउ अबव, फिर एक बार आर्म CD ऊपर आएगा, AB नीचे जाएगा, एंड द इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन DCBA। एक बार वो ABCD डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, फिर DCBA डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। द करंट जनरेटेड इन ईच कॉइल ऑफ द आर्मेचर विल एड अप, और इस वजह से टोटल करंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। द करंट विल फ्लो फ्रॉम द ब्रश B1 टूवर्ड्स B2, हाफ रोटेशन द आर्म CD इज अबाउ एंड आर्म AB नीचे हो जाएगा, एंड द इंड्यूस करंट विल फ्लो इन डायरेक्शन DCBA। हाफ सर्कल R2 इज नाउ कॉन्टैक्ट विद ब्रश B1 एंड करंट फ्लो फ्रॉम B1 to B2। द करंट इन दिस अरेंजमेंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द लूप, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट जनरेटर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, करंट इन दिस अरेंजमेंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द लूप। करंट का डायरेक्शन वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, पहले वाले में देखा था तो वहाँ पे चेंज हो रहा था, एक एरो ऊपर था, एक एरो नीचे था। यहाँ पे कैसा है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करंट जो है एक ही डायरेक्शन में रहेगा, फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, और उसी को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट करंट जनरेटर, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर। To obtain alternating current, we use instead of half circle a circular slip ring, due to which AB arm of the armature is always joined the brush B1 and CD arm। हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये रिंग्स यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आर्मेचर को मतलब ये इसको जॉइन होगा और ये इसको कंटिन्यू जॉइन होते जाएंगे, यही बताया है। B1 and CD arm to the brush B2। When the direction of the current in the loop is ABCD, external circuit is from B2 to B1, and when the direction DCBA, then from B1 to B2। Direction of current reverses with every half rotation of the loop, and this type of current which periodically reverse, ये क्या होता है, रिवर्स हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और AC। द असेंबली टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, और ऐसी मोटर, ऐसी असेंबली जो इस टाइप का AC करंट प्रोड्यूस करती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, you read the chapter, thank you।